For you, our guest of honor, one of the stalwarts of KGMU, Professor Dr. Ramakant. Sir is the former professor and head, Department of Surgery, KGMU. He created the anorectal unit in the department, upgraded pulmonary surgery unit. Sir is very passionate about tobacco cessation, and he was conducted as the director of Tobacco Cessation Clinic, sponsored by WHO. And presently, Sir is working as executive director in Piles to Smiles Clinic, Lucknow. Sir, we all know, is a very enchanting persona, has a huge fan base nationally and internationally. Sir has received numerous awards. Begum Hazrat Mahal Qaumi Ekta Award is one of them. He received WHO Director General's Award in 2005. He was the president of Association of Surgeons of India in 2012. He was also president of UP chapter of ASI, was vice president SARC Surgical Care Society in 2012. He received National Award Medscape India Best Surgical Skill, Eminent Best Senior Teacher Award in 2008, received Lifetime Achievement Award of ASI and UP chapter. He's published numerous research papers in both national and international journals, delivered over 2,000 guest lectures, delivered over 3,900 lectures on awareness on health issues, and published 8 books. 2 of his books have been awarded, including one on poetry. I request Sir to address the august gathering. Really today I am proud of the people who are here, and especially the very highly dignified and honored dais. I'm really grateful to the Honorary Vice Chancellor who invited me for this, and Vineet Sharma especially because he communicated to me this. And the letter which was written by our Vice Chancellor is something unique, and I really adore it, appreciate it, and I feel people should write like that. So thank you very much, sir. It was a fantastic letter, which is an example, and sometimes I'll talk about it later. Then I'm grateful especially to meeting one of the highest dignitary who is helping KGMC and medical sciences, Mr. Alok Kumar ji. I can understand why he is so good, because possibly his better half is making him like this, which is so nice and cooperative. And I loved it because he, in spite of everything, he mentioned and told something about me. And a lot of my friends were already there on the dais. So protocol already being mentioned. So time is very short. I do not know if I will be able to follow the military order or not really, but I'll try to do it. Friends, मैं हिंदी में बोलूँगा. मुझे मज़ा आता है हिंदी बोलने में. मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, जो भी लोग यहाँ पर हैं. सबसे पहली बात यह है कि आप जानना चाहते होंगे कि सफलता और खुशी के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे आदमी सफल होता है, कैसे ऊंचाइयों पहुँचता है, उनके सीक्रेट क्या है. आज वो मैं सीक्रेट जो मुझे पता है मैं बताना चाहता हूँ. सुनना चाहेंगे आप लोग? कोई सुनना ही नहीं चाहता तो क्या करेंगे? तो जोर से बोलिए ना, सुनेंगे? अच्छा, किसी को बताएंगे तो नहीं? कॉन्फिडेंशियल है? ओके, अच्छा बताइए. सूर्यकांत, ठीक है. कुछ राज होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, कुछ राज होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, कुछ दाग होते हैं जो दिखलाए नहीं जाते, और वो नगमे जो फूटते हैं कलेजे के फफोलों से बहुत रंगीन होते हैं मगर गाए नहीं जाते. फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं हिट करूंगा उन चीज़ों पे जिनका अनुभव, उसकी अनुकृति आपको बहुत आगे बढ़ के होती है जब उम्र बढ़ जाती है तब, और वही सत्यता है जीवन की. सबसे पहली चीज़ यह है कि हर किसी को जो यहाँ बैठा है, हो सकता कोई भाग्यशाली होंगे जिन्हें नहीं ज़रूरत है, हर कोई चाहता है मुझे लोग प्यार दें, मुझे सम्मान दें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे खुशी दें, और सब इसकी तलाश में. और पैसा तो अपनी जगह पर होता ही है, सब ढूंढते फिर रहे हैं. कोई भगवान से मांग रहा है, कोई इससे मांग रहा है. अगर मैं उसको आपकी से माफ़ी मांग के बात कहूँ, यहाँ सब के सब मांग ही रहे हैं. कोई ऐसा है जो कहता है मैं पूर्णतया संपूर्णतया खुश हूँ और मुझे किसी तरह कुछ नहीं चाहिए. ऐसे लोग सन्यासी टाइप के कुछ कम होंगे यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चाहिए.
कौन देगा? पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए, हर किसी के अंदर ये उम्मीद है, स्टूडेंट को टीचर से चाहिए, टीचर को स्टूडेंट से चाहिए, वो मुझे इज्जत दें, मैं उसे इज्जत। सब लोग इसी तलाश में परेशान हैं। पैसे कमा लिए, बड़े बड़े मकान बना लिए, दिल छोटे हो गए, मकान बड़े हो गए, लोग कम हो गए, और छोटे छोटे मकानों में दो दो चार चार लोग बैठे हुए हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आपने कभी सोचा? एक टाइम आने वाला है जब बच्चा जानता ही नहीं होगा चाचा क्या होता है, ताऊ क्या होता है। ही विल नॉट नो। आवर कल्चर इज डिसअपियरिंग। हम कम से कम आज लोगों को अडॉप्ट तो कर सकते हैं। हमारे साथ के रहने वाले और साथ के लोगों को, किसी को हमारे बच्चे चाचा कह सकते हैं, ताऊ कह सकते हैं। रिश्तों को मरने मत दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी बहुत ही ख़ास बात कि इस सबको अचीव करने का रास्ता क्या है। एक स्टडी हार्वर्ड में हुई, मुझे मालूम है आप सब लोगों को पता होगा, पढ़ते रहते होंगे। एंड दैट स्टडी वाज डन ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है क्या है। उन्होंने जब स्टडी किया लोगों को करीब नियरली आई थिंक 70-80 ईयर्स तक, और शुरू से लेके फॉलो किया, कौन क्या बना, किस क्लास में रहे, कहाँ किया, कैसे एनवायरनमेंट था। उसमें 2-3 चीज़ निकल के आई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप वही बताऊंगा मैं आपको केवल। उसमें ये निकल के आया कि वो लोग खुश थे जिनके रिश्ते अच्छे थे। वो लोग दुखी थे, चाहे पैसा हो, सक्सेस हो, टॉप पोजीशंस पहुंच गए, सब पहुंच गए, फिर भी रो रहे हैं। वो रीज़न ये था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिश्ते पत्नी से अच्छे नहीं थे, बच्चों से अच्छे नहीं थे, लोगों से अच्छे नहीं थे, जिनके संग काम किया वो भी उनसे अच्छे नहीं थे। तो नतीजा क्या है कि आप खुश नहीं रह सकते। एक और स्टडी हुई जिसको कि आपने देखा होगा कि वो कई बार प्रेजेंट किया है, मैंने भी किया, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, जिसमें इन पैरामीटर्स पे मोर देन 100 ईयर्स की स्टडी है। उन पैरामीटर्स जो स्टडी किए गए उनमें एक्सरसाइज थी, डाइट था, अल्कोहल था, टोबैको था, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। बट मैं उन सबको कट शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ, जो टॉप पे पैरामीटर निकला जिसने ये दिखाया कि ये लोग ज़्यादा सर्वाइव किए, दे सर्वाइव लॉन्गर, ये वो लोग थे जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 तक मैं बताऊंगा, उसके बाद की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सबसे गजब का जो पैरामीटर निकला उसका सोशल इंटीग्रेशन। आई एम कॉन्फिडेंट पीपल मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट। व्हाट इज सोशल इंटीग्रेशन? फ्रेंड्स, सोशल इंटीग्रेशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर आया था तो जो गार्ड खड़ा था उससे रोज़ मैं आता जाता हूँ, कभी मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बेटे कहाँ रहते हो, आते जाते कभी विश की। मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ मैं और हमेशा घूमता रहता हूँ सवेरे मॉर्निंग वॉक में। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मत सोचिए सेल्फ ग्लैमराइज कर रहा हूँ, मैं आपको उस बात का भेद बता रहा हूँ जो मैंने सीखा। ये स्टडी से सीखा, ये नहीं है हम कर रहे थे लेकिन हम जानते नहीं थे कि स्टडी का पार्ट हम भी होंगे शायद। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा होगा उस एरिया में गार्डन और टहलने वालों में से 90% लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कि मैं सबसे गुड मॉर्निंग करता हूँ। बड़े होते हैं उनसे, बुजुर्गों से नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्ते कहूँगा, कुछ भी बोलूँगा, मैं ऐसे ही नहीं निकल सकता। और नतीजा क्या है, आप बात कर रहे हैं आदमियों की। आई एम सो हैप्पी, कभी मौका मिला दिखा भी दूंगा आपको, 40-50 कुत्ते पिल्ले सब मेरे साथ चलते हैं। आप आ जाइए रिवर फ्रंट पर, जब चाहें आ जाइए, और उनको खाना खिलाते हैं। फ्रेंड्स, एक बस जरा सा सीक्रेट कहना चाहूँगा कि खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आदर चाहिए, जो चाहिए, मनी चाहिए, उसे दो, मिलेगा नहीं। देने से मिलने वाली चीज़ को मांग किससे रहे हो? आप करके देख लीजिए, मदद करके देख लीजिए, खुशी दे के दे लीजिए लोगों को। लोग कहेंगे हमारे पास है नहीं, जो है, हम पे एक रोटी है तो हम उसके एक टुकड़े को दे सकते हैं खा के। हमने अपने डिपार्टमेंट में सबके साथ खाया, बांधा है, और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ विनोद जैन, संदीप और सारे लोग बैठे हुए जानते हैं बैठ के, हमने कभी लंच अकेले नहीं खाया होगा। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे कमरे में आके सब लोग बैठते थे, एक मोहब्बत के उसमें बंधे थे रस्सी में, जिसे हम आज तक न तोड़ा है न तोड़ पाएंगे। और उसका प्राउड मुझे है, ऐसी ने मुझे उस बात की चिंता ही नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। सिलसिला है, चल रहा है और बढ़ेगा। उमा सिंह साहब ने जो बात कही बिल्कुल सच है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको, अब टाइम नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। रॉकफेलर ट्रस्ट का स्टोरी आपने सुना होगा। he developed a disease, the richest man in the world. He developed a disease which are declared by the doctors, I do not know the disease, that he will die within the next few months. जब उसको ये पता लगा तो उससे तंग आकर ये कहा कि ठीक है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी जो कुछ है, इनको हॉस्पिटल बनवा दो, ऑर्फनेज बनवा दो,
गार्डन्स बनवा दो लोगों के लिए, सब सब खर्च कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मर ही रहा हूँ. And will you believe unbelievable? Go, please go and check on the Google. I am not telling a lie. Do you know that after this he started improving and he lived up to 95 years? Predictions were wrong. आप करके देखिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चाहिए आपको, अगर आपको लगता है कि लोग मुझे आदर नहीं करते, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए. यहाँ मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा KGMC के अंदर, और इस चीज़ को हम लोग सब बढ़ा रहे हैं. हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं. वो जूनियर है, सीनियर है, हमें इसकी चिंता नहीं होती. जिसने पहले देखा वो उससे बोल देता है. उसका मुझे गर्व है, स्वाभिमान है. तो फ्रेंड्स, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता था आप सबसे कि ये सीख लीजिए. दूसरी चीज़ क्या है? एक क्लोज रिलेशनशिप. क्या है कि ज़्यादातर लोगों में लड़ाइयाँ इस बात की होती रहती हैं कि हम ये बुरा मानते हैं साहब की. मैं तो जो फ्रैंक बात बोलने वालों में से हूँ कि हम बदलना चाहते हैं लोगों को. आई वॉन्ट माई वाइफ शुड बिकम लाइक मी एंड शी वॉन्ट्स आई शुड बिकम लाइक हर. कोई किसी के बराबर बदलेगा नहीं. केवल एक शख्स बदल सकता है दुनिया में, वो हैं आप खुद. आप बदल सकते हैं अपने को. तो क्या है कि हमें अडॉप्ट करना है. और मैंने इसके लिए बड़ी सीक्रेट चीज़ थी, इसे बताना नहीं तो मेरी वाइफ मुझे हड़काएगी बहुत. वो भी डॉक्टर है, वो कहेगी यहीं की पड़ी हुई है. यहाँ से बहुत सारे लोग बीवियाँ ले जाते हैं साथ में, ये भी होता है. तो ऐसा है कि वो ये है सीक्रेट कि आप सेलेक्टिवली डेफ हो जाइए. ये मंत्र बहुत देर में समझ में आया, वरना बहुत सारी बातें अवॉइड हो सकती थी. क्या है कि आप सेलेक्टिवली डेफ मानी, हमने सुना ही नहीं, हम कुछ कहेंगे ही नहीं. अगर वो आज डांट देगी मुझको, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा उसको. और चुपचाप थोड़ी देर बाद कहेगी कुछ क्या समझ में आया, तो मैं कह दूंगा तुमने कहा था कुछ क्या. एनीवे, इफ वॉट एवर आई रॉन्ग आई हैव डन, आई एम सॉरी. फ्रेंड्स, ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इन पर कोई बोलने की हिम्मत करता नहीं है. सब एक फेस मास्क लगाए बैठे, आई एम हैप्पी. तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने ये करना छोड़ दिया. और इस पर एक बड़ी अच्छी शेर है मनोहर राणा की. वो ये है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या फ़ायदा कि बाद में पछताओगे और परेशान होगे. दूसरी चीज़ ये है कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर से कि आप इन पैरामीटर्स में क्विट स्मोकिंग ऑल्सो वॉज द थर्ड पैरामीटर, एंड फोर्थ पैरामीटर वॉज क्विट बूजिंग, एंड फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा अगर आप लोग बता सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे फ्लू वैक्सीनेशन लगवाए बैठे हैं. फ्लू वैक्सीनेशन बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं. फ्रेंड्स, ये फिफ्थ पैरामीटर है. इसके नीचे हेल्थ, वेल्थ, एक्सरसाइज सब अलग है. दूसरी चीज़, आई वॉन्ट टू डॉक्टर्स शुड रिमेंबर, एंड एवरीबडी, फॉर नर्सेज एंड एवरी पैरामेडिक, एवरीवन, कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या है. आई नो हैप्पीनेस है, बट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप 1 घंटा अपने लिए हमेशा निकालिए. आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए ये मत सोचिए मैं अपनी शान बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ. आज भी 4:30 बजे उठकर तैयार होकर मैं मॉर्निंग वॉक पे गया हूँ. कल भी गया था पानी में, छतरी लेके गया था. एंड आई वेंट देयर बिकॉज मुझे इस बात की बहुत अंदर से फीलिंग थी कि वो कुत्ते पिल्ले सब जो स्ट्रे डॉग्स हैं सब भूखे पड़े रहेंगे, और मैं टहल के घूम के जिम करके सब आया. कल से जिम बंद हुए हैं, बट करो, ये इंपॉर्टेंट है. और इसलिए यह है कि आप अपनी हेल्थ ठीक नहीं रखोगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला. आप जान लो कि हेल्थ ही केवल वो चीज़ नहीं है, हैप्पीनेस इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि मैं एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जो आप ज़िंदगी में भूलोगे नहीं. टेररिस्ट सब हेल्दी होते हैं. कभी देखा आपने को ऐसा करा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा. टेररिस्ट सब हेल्दी हैं, बट आर दे हैप्पी? दे आर नॉट हैप्पी. हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है, उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है. और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, अभी भी देर नहीं हुई, शायद टाइम हो गया ना सर? हो गया. थैंक यू वेरी मच सर. तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बी द बिगेस्ट ड्रीमर. जब सर ने परमिशन दे दी, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा. वो ये है कि बी द बिगेस्ट ड्रीमर. आप सपना देखते समय कंजूसी मत करो. ये मत सोचना कभी कि मैंने भगवान की कसम खा कर रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसे असंभव सपने देखे थे और सब पूरे हुए, इसी इंस्टीट्यूशन के कारण पूरे हुए. आई एम ग्रेटफुल. उनके बारे में आज बताऊंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ. मैं आपको केवल इंस्पायर कर रहा हूँ कि ये मत सोचना कि मैं ये नहीं बन सकता. आप सब बन सकते हैं. कोई लॉजिक नहीं है. लॉजिक होती तो गुलशन कुमार रस गाड़ियों तक पहुंचाने वाले, अक्षय कुमार गाड़ियों तक पहुंचाने वाले इस लेवल पे नहीं पहुंचते.
वो अंबानी पेट्रोल भरने वाला इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं बनता। कलाम साहब जो चिया बीजते थे, इमली का जो लोग थूक देते हैं उसको बेच के और जो लेते थे अपने चावल वो खाते थे रामेश्वरम में। डू यू नो, ही सच ए पुअर पर्सन। एंड कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। लॉजिक नहीं होती आजकल, आप सब कुछ कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज योर माइंड सेट शुड चेंज। माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए हाथी का बच्चे को पकड़ लिया और पैर में जंजीर बांध दी तो बेचारा बड़ा हो जाता, तब भी आपकी कहने मानता है और डरता है। लेकिन जिस दिन उसका माइंड सेट चेंज होता है, आपने केरल में सुना होगा, देखा होगा, वो एक नहीं पटक पटक के पेड़ों को भी और आदमी को सब मार डालता है, सब तोड़ के फेंक देता है। माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई डर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ना कि सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। और जब आप मुस्कुराएंगे, जब आप अच्छी तरह काम करेंगे, एक कम्युनिकेशन के ऊपर जरूर मैं कहना चाहूँगा। कई मैंने लोगों को देखा आ रहे थे, मैं बोल नहीं सकता ऐसे टाइम पर, कि अवार्ड ले रहे थे लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं है। अरे आओ हंसते हुए तो आओ, दिखाई दो, ये तो ठीक है कि अंदर अंदर सब परेशान है, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं है। स्प्रेड हैप्पीनेस, वाइब्रेशंस पॉजिटिव वो दीजिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड सेट चेंज हो। उसके बाद लास्ट में आपको एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ कि आप देखिए राइट ब्रदर्स को, और सैमुअल एक था, आपको बता रहा हूँ जस्ट शॉर्ट थिंग, कि राइट ब्रदर्स जो गरीब थे, उनके पास कुछ रिसोर्स नहीं था, उनको कोई ग्रांट नहीं थी, उनकी कोई एंट्री नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई जानता ही नहीं था। वो दो भाई जुड़े हुए थे अपना, कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो हवाई ऊपर उड़ेगी। तो हवाई जहाज नाम नहीं था। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है, पागल है ये। He saw the biggest dream. Samuel was granted in 1890 or somewhere by USA, somewhere at that time, $50,000 for making flying machine. Will you believe it? Go back and check in the Google. सैमुअल नाम था उनका, उनको मीडिया कवरेज मिल रही थी, सारे लोगों में बात हो रही थी कि वो फ्लाइंग मशीन बना रहे हैं, फ्लाइंग मशीन। 50,000 ग्रांट दी गई थी डॉलर्स की, एंड सैमुअल ब्रदर्स को कुछ नहीं मिला था। फर्क क्या था, क्यों उसने बना लिया राइट ब्रदर्स ने और सैमुअल नहीं बना सके? इंटेंशन डिफरेंट था। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? उसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे दुनिया बदलेगी, ये था राइट ब्रदर्स का। और सैमुअल का ऑब्जेक्टिव था कि मैं पैसे कमाऊंगा, इसमें रिच लोग ट्रैवल करेंगे, एंड ऊपर वाला सब इंतजाम करता आपके लिए। जीता कौन? उसका जिसका इंटेंशन सोसाइटी के लिए था, जिसने सोचा था कि लोग इसमें जाएंगे, दुनिया बदलेगी। दैट वॉज द थॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी गलती ना करें। और अब मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि केवल दो चीज़ों को परमिशन सर 2 मिनट के दिए दीजिएगा मुझे। वो एक तो ये कहना चाहूँगा कि अभी भी सोच लो बैठ के, जख्म भर जाएंगे, दिन संभर जाएंगे, तुम मिलो तो सही। आप मिलते ही नहीं किसी से, जाते ही नहीं किसी के पास। वक्र के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। वो दिखाते हैं सपने जो नए जन्म के, उनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। इसलिए क्या है कि वक्त संवर जाएगा, जख्म भर जाएंगे, तुम मिलो तो सही। और इसलिए फ्रेंड्स, लास्टली आई विल से वन थिंग, कि जब आप कोई एफर्ट करेंगे, उस ड्रीम को मन में छिपा के मत रखना, तो बेकार है। ड्रीम वो है जिसको आपने डंके की चोट पर बताया कि आई वॉन्ट टू बी दिस। लोगों को मालूम हो क्यों? क्योंकि फिर आपके लिए प्रेस्टीज इशू बनता है और आप रात दिन ताकत लगाते हैं, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जुड़ते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, एंड यू अचीव इट। जो छिपा के रखते हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, वो शायद ही कभी पूरे हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन फिर एक बात कहना चाहूँगा, उस समय बड़ी अपोजिशन होती है। यहाँ के लोग सब गवाह हैं इस बात के। किसी ने इस बात को, मैंने तो कम कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा किसी हायर अथॉरिटी ने कहा था कि रमाकांत इज ट्राइंग टू फाइट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ASI। ये मीटिंग में कहा गया था, और सब हंस रहे थे कि 50-60 साल से कोई बना नहीं था यूपी से। हमने कहा हाँ, मुझे उसके फैसले का इंतजार नहीं, मैं बन चुका। दैट वॉज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं बनूंगा। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ, उस समय जो बुरा लगता है उसको समझाने के कह रहा हूँ। कुछ लाइनें याद कर लो, काम आएंगी। कि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इश्क में जीत के आने के लिए मैं काफ़ी हूँ। बस सर ये लास्ट है। इश्क में जीत के आने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और इस दुनिया के सर को झुकाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। और मेरे बच्चों, मुझे खूब खर्च करो, दिल खोल के खर्च करो। मानिए एकेडमिक्स का पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो कि तुम आज भी दिन में कमाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।
और मेरी हकीकत को स्वप्न समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारे सर को झुकाने के लिए आज भी काफ़ी हूं। और आखिरी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, कभी डरना नहीं, इस चीज़ को कहा करो, बोलो। हमने कहा कि जब मैं सुनाता हूँ इस बात को कहता हूँ कि मैं अखबार का एक टुकड़ा ही सही, मैं अखबार का एक टुकड़ा ही सही, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस शहर में नींद उड़ाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। थैंक यू।